Good morning, everyone. My name is Manish, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 mathematics, chapter number 12, that is reflection. Right, sir? You might have taught us reflection in class 9 physics. Yes, I do agree. But children, that reflection has got application in class 10 mathematics chapter number 12. Right, children? This is very important. You will get definitely one long type from this chapter in your board examination. Right, children? So, children, you know what is my punchline. Children, build it right and build it once. Clear? So let us build the concept only once. Let us practice it. Let us involve ourselves so that our concept will build like anything. Okay? So बच्चों अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो और आओ मेरे साथ शुरू करते हैं. बच्चों क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10 बोर्ड होगा ICSC. Right, children? Board is what? ICSC. Clear? And children, we have mathematics. Mathematics. Clear, children? Right? This is mathematics. This is chapter number 12. Clear? Chapter number 12. Okay? And the name of the chapter is reflection. Right? Sir, this is just like physics. Absolutely. You will see, children, this chapter is really pleasing you. Right? This chapter will please you, children. Right? So name first what is reflection. Okay, children? So, children, before see, we are not going to study about the reflection in physics which we have studied. Right, we will study about its application. Right, children? So first, children, we write down coordinate axis. Children, write coordinate axes. So a little bit, children, since this is coordinate geometry, so I have not made a video on coordinate geometry. Surely after this, because many children has demanded me, sir, kindly make a video on this chapter. Right, so after that I will make a video on coordinate geometry as well. Right, children? So children, see what are the coordinate axes. Children, see, if I draw just two lines, right, children, two perpendicular lines, right, children? So this one is positive x-axis, this is negative x-axis. Right, children? This is positive y-axis, this is negative y-axis, and this point is what, children? I can say origin. Right, children? 0, 0 is known as origin. Clear, children? So children, if you go on x-axis, right? If you are moving towards x-axis, the value of y remains the constant. Right? So if I say, what is any point on x-axis, children? What is any point on x-axis? So children, see, this is what the origin, right, children? Okay, where the value of x and y both are 0. Right? When you are moving towards the x-axis, children, okay, so the value of y remains what? Remains 0. Right? The value of x only changing, children. For example, this is let x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, but the value of y remains the constant. Clear? So I can say any point on x-axis in x comma x, and in y this is 0. Clear, children? Similar, children, when you are moving towards the y-axis, okay, let this is y equal to 1, y equal to 2, y equal to 3. So you are moving on the y-axis, the value of x remains the 0. Okay, so any point in x this is 0, in y this is y. Clear, children? So I can say this is x-axis, the horizontal is x-axis, and the vertical line is y-axis. Any point on the x-axis is x comma 0, any point on the y-axis is 0 comma y. Right? I can also write, if I will say y is equal to 0, children, if I say small y is equal to 0, this represent x-axis. Is that clear, children? If I say small x equal to 0, this represent y-axis. Right? And based upon this only we have taken the points on x-axis and y-axis. Is that clear, children? Yes or no? So if I say what are the coordinate axes, there are two coordinate axes. One is
let it be XO X dash. Okay, let this is YO Y dash. Okay, children. So XO X dash is horizontal line. Horizontal X I mean line is X axis. So I can say this is X axis. Okay, and YO Y dash is equal to Y axis. Clear, children? Right? Then please write coordinate of a point which I already explained, right, children? So this is the any point is x comma 0, any on x axis, any point is 0 comma y on the y axis. Clear, children? Right? Okay, so children, just see, okay, these are the coordinate axes and coordinates point which are really very easy, children, and at the same time these are very important, right? See, if you understood coordinate well, you can solve coordinate, you can solve, you see, reflection, at the same time mirror, I mean what that reflection, and one more thing, midpoint and section formula. All the three chapters, I mean the basic is what? Coordinate geometry, right, children? So as I said already, okay, children, so as I said, if I say y equal to 0, which represent x axis, right? If I say x equal to 0, it represent y axis. Okay, I will say 0 comma 0, it means what, children? Origin. Okay, children, if I say x comma 0, this is any point on x axis. Clear? If I say 0 comma y, this is any point on y axis. So these things, children, you should understand well. Clear, children? Right? Now, for example, is it done, children? Please copy it. Children, see, अपना नोट्स अच्छे से बनाओ बच्चों। हाँ, नोट्स को किसी भी कीमत में ना बच्चों, है ना, मतलब यूं ही मत समझो। हाँ, मल्टीपल कलर ऑफ पेन इस्तेमाल करो और नोट्स बनाओ, ठीक है बच्चों। और एक बात बच्चों, मान लो जैसे बच्चों मैंने बोलता, देखो ध्यान देगा उसमें बच्चों, यहाँ पर है ना, मान लो मैंने कहा कि यार ये x इक्वल टू ए है, तो एक लाइन यहाँ खींच दो, ठीक है, तो ये लाइन क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू ए होगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है x इक्वल टू ए इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू क्या बच्चों? दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, राइट। सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट x इक्वल टू माइनस ए, सो x इक्वल टू प्लस माइनस ए इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर? yes or no, children? Clear, right? Similarly, children, if I will draw the line which is y इक्वल टू बी, हाँ, बहुत ही आसान है बच्चों, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो मान लो ये रहा कोडेड एक्सिस, ठीक है। तुमने क्या किया बच्चों? ये है y ओरिजिन y डैश, x ओरिजिन x डैश, ठीक है। तो मान लो बच्चों ये है y इक्वल टू बी लाइन, ठीक है, y इक्वल टू बी, और ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो जो ओरिजिन के नीचे आए वैल्यूज हम लेंगे माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस है। जो ओरिजिन के ऊपर जाए वर्टिकली डायरेक्शन में, तो हम वहां पर y के वैल्यू क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आई विल से y इक्वल टू प्लस माइनस बी, ओके, इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आया बच्चों? तो ये सारे थे क्या? लाइन, ठीक है, राइट। ओरिजिन से मान लो ये डिस्टेंस b है बच्चों, तो ये हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ b, ये कितना हो जाएगा? माइनस बी। बेसिकली हाइट तो नेगेटिव नहीं होता बच्चों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है नेगेटिव y एक्सिस में, इसलिए डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन add kara before the value. Clear, children? Right? So these are the basic thing. We will move further. I mean, because this chapter is, I mean, very interesting, at the same time very important as well. Right, children? Clear? Okay. So children, these are the basics thing. Now let me ask you a few questions, children. Just see, children, draw the coordinate point, children. The example is, for example, let us draw the some coordinate point. For example, 2 comma 4. Okay, children, 2 comma 4. So children, see, you draw the point 2 comma 4, right? So let this is y axis, this is origin,
right? This is what? Minus y-axis, this is minus x-axis, this is x-axis, right children? So this graph, I mean this point you need to plot on the graph, right? So what happened here? देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर, मान लो ये x equal to 1 है, 2 3 4 5, for example this is minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5. Since I don't have the graph paper here, that is why I'm writing in this manner, right? This is 1 2 3 4 5. Similarly children, this is positive y-axis, so 1, this is 2, this is 3, this is 4, this one is 5. This is minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and this is minus 5. So in this way we will draw the graph. Have you seen a graph paper children? Okay, right? I think you might have seen a graph paper, right children? Okay, now see children, I have to locate the point 2 comma 4. So children, how do I show 2 units from x-axis, right? Okay, so children, this is see 1 and 2 here, and then 4 unit on y-axis. So I will go parallel to y-axis. 1 2 3 4. So this is the point, okay, whose value is 2 comma 4. Clear children, right? Similarly children, if at all I want to draw for example, other example is minus 1 comma 3. Children, minus 1 comma 3. So in x this is minus 1, so this is minus 1, and in y this is plus 3. Okay, so 1 2 3, this point is what children? Minus 1 comma 3. Let this is p, this is q. Okay children, right? In this manner children, you can locate the graph 4 comma minus 3 children. Okay, 4 comma minus 3. Okay, so 4 I can say 4, let r 4 comma minus 3. So in x positive 4, right? So 1 2 3 4. In y this is minus 3, so will you go down or will you go up? Obviously down. Okay, so minus 3, so they have minus 1 minus 2 minus 3. Okay, so this is the point r 4 comma minus 3, right children? So in this manner children, you can locate the point on the graph, right? Very easy children, right? Very easy. Okay, so these are the basics children. Now let us move to the gist of this chapter. I mean to say reflection, right children? So please write down children, reflection. Please write down reflection, right? We all know one thing, what is the meaning of reflection. So before that, let us discuss about the reflection in brief about the plane mirror, right? See what happens, this chapter is the explanation, I mean to say application of reflection which you studied in class 9, what? Physics. Clear children? Chapter number 7. Okay, reflection at the plane mirror, right children? Okay, so bachcho, see, if you take a plane mirror, just imagine, so one side is what children? Silver, right? So this is, I can say, silver side, this is, I can say, reflecting side. So we know one thing, what is the characteristics of the plane mirror, right children? So if you place an object here, right, let us assume a is an object which is placed x distance from the plane mirror. So where will the image form children? Where will the image form? Exactly x distance inside the mirror the image will form. Am I clear to all of you children? Right? So this will be areas. So if I place the mirror in this manner, so image of the object A will be formed inside the mirror, and object distance, this distance is what children? Object distance, that is equal to image distance. So this brief concept of physics you need to require in order to draw the location of the point, or if the mirror is placed along the x-axis, y-axis, or along the origin, right children? Clear? So this much physics is required in order to solve what children? The question of mathematics, right children? Okay, so children, first write image of an object in a mirror. Write down image of an object, image of an object in a mirror. In a mirror. नाम दो बच्चों, टॉपिक नाम दो, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मिरर. बहुत आसान है यार, देखो बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे इसका, ठीक है, राइट? जरा सोच के देखो बच्चों, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, राइट? पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ क्वाड्रेंट, है ना बच्चों? क्या बताऊंगा? क्वाड्रेंट, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वाड्रेंट, ठीक है, राइट बच्चों? तो बच्चों देखो, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्या है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUA, DRANT, क्वाड्रेंट. यहाँ पर देखो बच्चों, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? ये हो जाएगा बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट,
ठीक है। यहाँ पर देखो x नेगेटिव है लेकिन y क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों। देखो यहाँ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आई कैन से नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। समझ में आया बच्चों, राइट। तो बच्चों ये चार क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब डिपेंड करता है बच्चों कि तुमने मिरर को कैसे रखा है। ठीक है, तुमने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है एक्स एक्सिस पे कि वर्टिकली रखा है वाई एक्सिस पे, ये हमें पता लगाना है। ठीक है बच्चों, तो जैसे तुम मिरर रखोगे वैसा ही इमेज बनेगा। समझ में आया कि नहीं है? जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ही आसान है बच्चों, एकदम डरने की बात नहीं है, एकदम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मान लो बच्चों तुमने यूं एक मिरर रखा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, मेरे पास थोड़ा लिखने का जगह कम है बच्चों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है तुम्हें, राइट राइट बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैंने और ये बनाया, ठीक है, एक्सिस, ये हुआ एक्स, ये वाई ओरिजिन, ये मान लो -x, ये हो गया -y। ठीक है, तो बच्चों मान लो मैंने यहाँ एक पॉइंट लगा P x, y, जरा ध्यान देके सुनो, बहुत 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 आसान है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट लिया P x, y, अब मैंने मिरर रखा x एक्सिस पे। ध्यान देकर सुनो बच्चों, मैंने मिरर कहाँ रखा, मिरर कहाँ रखा, x एक्सिस में। ठीक है, तो देखो ये यार ये मिरर है, ठीक है, मैंने यूं मिरर रख दिया, तो मुझे बताओ बच्चों इसका इमेज कहाँ बनेगा। मिरर तो ऐसे है तो जाहिर सी बात है मिरर के अंदर बनेगा, तो मिरर के अंदर मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, फोर्थ में आएगा। तो बच्चों यहाँ से इसकी दूरी जितनी है वहां से उस सेम दूरी में मान लो पी ds, तो क्या होगा बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मैंने क्या कहा, फोर्थ में x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव, तो x होगा पॉजिटिव, y बन जाएगा नेगेटिव। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अगर मैं बोलूं यहां से यहां की दूरी कितनी है, दैट इज x है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, दैट इज y है। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे यार हाँ या नहीं? और तुम्हें पता भी है क्या, व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक नॉर्मली द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड द लाइट रिट्रेसेस इट्स ओन पाथ, राइट बच्चों। ठीक है, तो यहां से वापस चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, हाँ या नहीं? ठीक है, राइट। तो बच्चों ये रहा P। अब जैसे मान लो सेम डायग्राम में मैंने कहा बच्चों, सेम डायग्राम, अब मैं ये तुम्हें समझ में आ गया ना बच्चों, इसको मिटा दो, एक और डायग्राम बनाओ। अब मैंने क्या करा, अब मैंने मिरर को यूं रखा, वाई एक्सिस में रखा। ठीक है बच्चों, तो जब तुम मिरर को रखोगे कहाँ बच्चों, वाई एक्सिस में प्लेस करोगे तो इमेज मान लो यहाँ पर पी डबल डैश बनेगा। तो बच्चों यहाँ से जितनी दूरी है यहाँ से उतनी ही दूरी में बच्चों इमेज बन जाएगा। कहाँ, इस तरफ बनेगा बच्चों, जाहिर सी बात है क्योंकि मिरर ऐसे रखा है हमने वर्टिकली। अरे यार हाँ या नहीं? तो सेकंड क्वाड्रेंट का कहाँ बनेगा, आई मीन सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ऑब्जेक्ट है या कोई पॉइंट है तो इमेज बनेगा कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। उसमें x क्या है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -x, और y क्या है, पॉजिटिव। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, अगर तुमने मिरर को रखा x एक्सिस में, ठीक है, मान लो अगर ये मिरर है तो इसका इमेज इधर बनेगा P ds। ठीक है, अगर मिरर रखा वर्टिकली y में तो इसका इमेज बनेगा P डबल ds। तो मैंने तुम्हें बताया कोऑर्डिनेट उसका बदल जाएगा, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों? आपने तो हार्ट ब्रेक कर दिया। अरे यार हार्ट बना लेंगे ऐसे दोबारा, राइट। ठीक है, हाँ तुम्हें अच्छा लगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था, हमने x एक्सिस में y एक्सिस में मिरर को रखा। अब हो सकता है मिरर को थोड़ा हम ऊपर उठा के रख दे, मतलब या तो x के ऊपर रखे या तो y के ऊपर रख दे। ठीक है बच्चों, तो ये था क्या बच्चों, मैंने मिरर को x एक्सिस के ऊपर रखा था या फिर y एक्सिस के ऊपर रखा था, और हमने इमेजेस बनाए उन पॉइंट्स के जो पहले किसी भी एक क्वाड्रेंट में है। समझ में आया? अब लिखो बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट in a line parallel to x axis parallel to x axis। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं एक बार दोबारा। क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या होता है इसका मतलब। अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, बड़ा ही आसान है बच्चों, ध्यान देके सुनो बच्चों। क्या हुआ बच्चों, देखो मैंने पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। ठीक है बच्चों, ये हुआ x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये -x, ये -y। अरे यार समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मुझे बताओ। ठीक है, क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मान लो यार ये है ये लाइन, तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मान लो ए है, मान लो यार क्या है ए है, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट पी ले रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चों, अब जो पहले मिरर एक्स एक्सिस पे था, अब ये मिरर यहाँ आ चुका है। तुम्हें समझ में आया बच्चों, मिरर की हाइट एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर है बच्चों, ए हाइट क्या है ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पता है ये रहा मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, यार परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ में आया ना बच्चों, हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करना है। ठीक है राइट, तो पॉइंट से तो ये डिस्टेंस जितना होगा बच्चों यहाँ से ये डिस्टेंस उतना ही होगा, यहाँ मान लो पीडीएस बना। समझ में आया, अब इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया अल्फा कोमा बीटा, इस पॉइंट को मैंने ले लिया एम, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है बताओ मुझे। सर नहीं पता, अरे यार कितनी है, एक्स से यहाँ की दूरी कितनी है। सर कहाँ से कहाँ, आप तो यहाँ से यहाँ बोल रहे, अरे यार तुम देख रहे हो मैं कहाँ से कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दूरी है एक्स, ये दूरी है वाई। ठीक है राइट, ये दूरियां, ये क्या तुम्हें गाना याद आ गया क्या बच्चों, राइट। अच्छा ध्यान देके सुनो, सर बड़ा ही बकवास गाया था। ठीक है यार, थोड़ा सा गला खराश है, वरना मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छे से गाया था। ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो, तो ये पॉइंट एम है, तो यार एम का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ एक्स है, और यहाँ से यहाँ वाई में कितना है, वाई है, तो एक्स कोमा ए हो जाएगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आ रहा, अरे यार यहाँ से यहाँ क्या, सर ओरिजिन से ये पॉइंट पी की बात कर रहा हूं, एक्स में दूरी कितनी है, एक्स है राइट। अब इस एम का मतलब वाई में वर्टिकल एक्सिस में दूरी कितनी है, ए है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों, दैट इज एक्स कॉमा ए बन जाएगा। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये एम पी और पीडीएस का मिड पॉइंट नहीं है क्या, बिल्कुल है सर। तो हमने सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर तुमने वो मेरा वीडियो ना देखा हो बच्चों, तो टाइप करो मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला बाय मनीष सर, मेरे चैनल में जाओ देखो, तुम्हें एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों राइट, तो बच्चों क्या होगा, ये एम हो जाएगा मिड पॉइंट। ठीक है, सो एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी पीडीएस। पी क्या है बच्चों, पॉइंट है, पीडीएस क्या है बच्चों, उस पॉइंट का इमेज है। ठीक है राइट, यार मिरर रखा हुआ है ऐसे, तो जाहिर सी बात इमेज नीचे ही बनेगा ना यार। हाँ यानी ठीक है बच्चों, समझ में आया ना बच्चों, अच्छा हाँ समझ में आ गया। अब तो बच्चों, तो एम का कोऑर्डिनेट कैसा होगा बच्चों, देखो क्या है फॉर्मूला। अगर बच्चों तुम्हारे पास में दो पॉइंट है, x1 y1, दूसरा है x2 y2, तो बच्चों क्या है उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 होल डिवाइड बाई 2, यही है फॉर्मूला। यार हाँ या नहीं यार, हाँ सर यही फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास में ये पॉइंट अवेलेबल है, मेरे पास ये पॉइंट अवेलेबल है, तो मिड पॉइंट निकाल दो, तो क्या होगा बच्चों, x प्लस अल्फा बाई 2, दूसरा y प्लस बीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो बच्चों देखो x प्लस अल्फा बाई 2 क्या है, दैट इज x है। अरे यार ये मिड पॉइंट तो यही है ना। ठीक है, तो कंपेयर कर दो, तो बच्चों x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू x, सो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2x, implies अल्फा इज इक्वल टू x। तो अल्फा निकल गया बच्चों, कहाँ रहेगा, x आएगा। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो बच्चों, y प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू a, implies y प्लस बीटा इज इक्वल टू 2a, implies बीटा इज इक्वल टू माइनस y प्लस 2a। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों, ये इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इमेज बनेगा x कॉमा माइनस वाई प्लस 2a पे। ठीक है, तुमको एक्स वाई पता है, यहाँ से लोकेशन पता है तुमको, वो पुट करके निकाल दोगे। समझ में बच्चों आया या नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड। ठीक है, हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, डोंट वरी, है ना बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर ले गए मिरर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, वाई एक्सिस पे जो मिरर रखे थे, अब उसको इधर या इधर ले आएंगे, बात बराबर है यार, इधर ले आओगे नीचे ले आओगे तब भी हो जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, राइट, आया समझ में बच्चों, तुम्हें अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो सर समझ में आ गया, राइट, ओके। ओ बाबा बहुत ठंडा लग रहा है बच्चों, इसलिए मैंने ब्लेजर पहन रखा है, वीडियो में रात को शूट कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तुमने पहना हो, तुमने सोचा होगा सर आपने काला चश्मा क्यों पहना, मुझे पसंद है बच्चों, है ना,
काला चश्मा, ठीक है, राइट, सूट करता है चेहरे पे, राइट, हाँ या नहीं। तो लिखो बच्चों दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। बच्चों ये जो पैरेलल टू एक्स था, अब इसको कर दो पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आया बच्चों, राइट, हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अब लाइट को मैंने पैरेलल टू वाई एक्सिस लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा क्या क्या ड्रॉ करना पड़ेगा सर, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज वेरी गुड। ये हो गया 0, ये हो गया माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है बच्चों, राइट, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ क्या लिया हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन पैरेलल टू क्या बच्चों, वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई। तो बच्चों मान लो मैंने पैरेलल टू वाई तो मैंने एक्स इक्वल टू ए ले लिया यार, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए हो गया। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, आया समझ में, क्लियर। अब जरा ध्यान देकर सुनो, तो यार ये डिस्टेंस कितना हो गया, कितना कितना हो गया बाबा, कितना हो गया, दैट इज ए हो गया, एक्स इक्वल टू ए है ना यार, एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, तो ओरिजिन से ये रिश्ता कितना होगा, ए होगा, एक्स इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास मान लो एक पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट पी है, पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों। तो मान लो मैंने यहां से लिया, तो यहां से यहाँ की दूरी कितनी होगी बच्चों, यहां से यहाँ की दूरी होगी एक्स, अरे यार हाँ या नहीं, और यहां से यहाँ की दूरी होगी कितनी बच्चों, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट कर लो बच्चों, सर आप सीधा लाइन बना दीजिए। एडजस्ट हम क्यों करें, हाँ बात तो सही बात है बच्चों, एडजस्ट करना भी नहीं चाहिए लाइफ में बच्चों, जो एडजस्ट कहा एडजस्ट रिसोर्सेस में कर लो बच्चों, पढ़ाई में कभी नहीं, कभी नहीं मेरे बच्चों, पढ़ाई में कभी नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो गया बच्चों, वाई हो गया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है बच्चों। अब हमने मिरर को यूं रख दिया है, तो ये हो गया उसका सिल्वर सरफेस, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग। तो मुझे बताओ कि अब यहाँ से यहाँ मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया एम। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, तो मिरर से इमेज की दूरी भी उतनी ही होगी। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, आ गया सर, तो मान लो ये रहा इमेज, ठीक है बच्चों, ये रहा पी डैश, अरे यार हाँ या नहीं, तो मान लो पी डैश का कोऑर्डिनेट है अल्फा कोमा बीटा, अरे मान लो यार क्या है, अल्फा कोमा बीटा है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एम का कोऑर्डिनेट, तो एम का कोऑर्डिनेट बेटा एक्स में कितना है, ए है सर, वाई में कितना है बच्चों, वाई है, देखो, अरे यार एक्स में ही रहा, वाई में कितना है, वाई है, तो ये कोमा क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। तो आई कैन से क्या बच्चों कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, अरे यार हाँ या नहीं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश, ठीक है बच्चों, राइट। और हमें पता है व्हाट द मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट। तो निकालो बच्चों क्या होगा, एक होगा x प्लस अल्फा बाई 2, दूसरा हो गया y प्लस बीटा बाई 2, ये निकल जाएगा कोऑर्डिनेट किसका बच्चों, दैट इज m का, ठीक है। लेकिन m का कोऑर्डिनेट हमको पता है a कॉमा y है, तो कंपेयर कर दो बच्चों, तो x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर a करो, है ना, तो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2a, तो अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2a। समझ में आया बच्चों, राइट, क्लियर, हाँ सर समझ में आ गया, अल्फा का वैल्यू मिल गया सर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ कंपेयर करो, y प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू बीटा, अरे यार सॉरी इज इक्वल टू बीटा नहीं बच्चों, सॉरी, तो ये y प्लस बीटा बाई 2 इक्वल क्या होगा, दैट इज y होगा, ठीक है। तो y प्लस बीटा बराबर 2y और बीटा बराबर y, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2a और हो जाएगा y। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, वेरी 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 गुड बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों तुम्हारा, तुमने मिरर को x के ऊपर रखा एक वाले केस में, एक वाले केस में y से उधर रखा, ठीक है बच्चों, राइट, एक में रखा y के ऊपर, x में रखा x के मतलब साइड में, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया क्या बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्शन। बहुत ही आसान है बच्चों, राइट, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, यकीन मानो तुम्हें स्वाद आ जाएगा, सर क्या ये खाना है, तो स्वाद आ जाएगा, यकीन मानो खाना से ज्यादा स्वाद आएगा बच्चों ये, ठीक है, राइट बच्चों, खाना कम पढ़ाई ज्यादा, खाना कम कहने का मतलब ये है बच्चों कि बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है बच्चों, राइट, जितना पेट डिमांड करे उससे एक रोटी कम खाना है, ताकि हमें नींद ना आए बच्चों। तुम्हारी आंखों में नींद अभी नहीं होनी चाहिए बच्चों,
खूब मन लगा के पढ़ना है तुमको, खूब जी लगा के पढ़ना है बच्चों, राइट। तो आप बच्चों नोट लिखो, कुछ नोट लिखो बच्चों, चलो लिखो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है बच्चों। हाँ सर, क्या ये नोट पैसा देगा? यार यही नोट तुमको पैसे के पास पहुंचाएगा, ठीक है, और तुम दुनिया में खूब ऊंचा मुकाम हासिल करोगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो बच्चों, पहला लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, लिखो बच्चों पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ पी पी एक्स वाई, ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस कितना था बच्चों? जरा ध्यान देगा, क्वाड्रेंट 1 में एक्स में तुमने मिरर रखा तो कहाँ बनेगा? फोर्थ में बनेगा। तो फोर्थ में क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों? पी डैश। फोर्थ में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव, लेकिन वाई हो जाएगा क्या बच्चों? नेगेटिव। तो एक्स कॉमा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब वर्टिकल में रखा हुआ है तो फर्स्ट में तो कहाँ बनेगा? सेकंड में बनेगा, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? पी डैश एक्स हो जाएगा, नेगेटिव वाई रहेगा क्या बच्चों? दैट इज पॉजिटिव। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। और तीसरा बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी ऑन ओरिजिन, ठीक है बच्चों, और बाई ओरिजिन, बाई ओरिजिन लिखो बच्चों, बाई ओरिजिन इज पी डैश, ओरिजिन लिखो, हाँ, बाई ओरिजिन इज पी डैश माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। मैं तुमको ओरिजिन को लिख के बताता हूँ कैसे होता है, ठीक है, समझाता हूँ बच्चों ना। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? इसको पहले वाले को लिखेंगे आर एक्स, क्योंकि ये क्या है? एक्स एक्सिस में है। किसका बच्चों? किस पॉइंट का है बच्चों? दैट इज एक्स वाई का है। तो आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, मतलब पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक्स लिखा, मतलब मिरर कहाँ रखा हमने? एक्स में रखा है। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? दैट इज कहाँ? एक्स कॉमा माइनस वाई रहेगा। समझ में आया बच्चों? सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे सेकंड वाले को बच्चों? आर वाई एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा वाई, और इसको लिखेंगे बच्चों आर जीरो ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। रटने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ वही बच्चों, ठीक है। ये तीन चीज तुमको समझ में आया बच्चों? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। आओ थोड़ा समझते हैं बच्चों ओरिजिन की कहानी, ठीक है। आओ सुनाऊं तुमको ओरिजिन की कहानी, ठीक है बच्चों। एक थी वही दीवानी, आवाज बैठा हुआ है यार, एक दिन मैंने क्या ठंडा पी लिया यार, थोड़ा सा आवाज बैठ गया बच्चों। टीचर से यार अगर आवाज ना बैठे तो खाक टीचर है, राइट। कहने का मतलब ये है बच्चों, टीचर है उसका काम है बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो पढ़ाएंगे तो गले पे तो जोर पड़ेगा, राइट, लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बच्चों की खूब मदद करेंगे, ठीक है बच्चों, राइट। अब बात करते हैं ओरिजिन का। जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ये हो गया एक्स, ये माइनस एक्स, ये हो गया वाई, ये माइनस वाई, ओके, ये हो गया ओरिजिन। तो ये हो गया पॉइंट पी कोमा एक्स वाई। एक बार फिर से समझ लेते हैं पहला केस। यार यहाँ रख दो मिरर, कहाँ रखा हमने बच्चों? एक्स में रखा। इमेज कहाँ बनेगा? कहीं यहाँ बनेगा, पी डैश क्या बनेगा? एक्स हुआ पॉजिटिव, वाई हो जाएगा नेगेटिव, हो गया। सेकंड केस है बच्चों, इमेज यहाँ रख दो यार, यहाँ तो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज बनेगा यहाँ पर पी डबल डैश। तो बच्चों ये कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स क्या है? नेगेटिव, वाई हो गया पॉजिटिव। और तीसरा क्या है बच्चों? ओरिजिन में रख दो, ठीक है, ठीक है बच्चों, तुमने रख दिया ओरिजिन में। तो यार अगर यहाँ है, यहाँ है तो कहाँ बनेगा बच्चों? देखो जरा सोच के देखो बच्चों ना, तुमने ओरिजिन में यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? है ना, यहाँ रखा हुआ तुमने। तो अब जब यहाँ रखे हो बच्चों, तो देखो हो सकता है ये पॉइंट इसके ऊपर चल जाए, हो सकता है ये पॉइंट इसके मिरर जो है मिरर के ऊपर पॉइंट रह जाए, ठीक है। देखो ये पी डबल डैश, ठीक है बच्चों। और बात करें तो क्या पी डबल डैश जो है वो मिरर के ऊपर में, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, यहाँ पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो इमेज कहीं यही ना बनेगा यार, कहीं यही ना बनेगा। तो किस स्क्वायर में बनेगा? माइनस एक्स माइनस वाई। नहीं समझ में आया सर? अच्छा मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैंने मिरर को यूं रखा मिरर को, मैं ध्यान दो, मैंने यूं रखा। तुम इतना लंबा मैं करता ही नहीं हूँ, इतना लंबा मैं मान लो मिरर को करता ही नहीं हूँ, मैंने मिरर यहाँ तक रखा। अब समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है, राइट। अब आया, अब देखो मैंने मिरर को यूं रखा,
जब मिरर को यूं रखूंगा तो इमेज क्या इधर नहीं बनेगा, ये पॉइंट का इमेज यहाँ नहीं आया क्या बच्चों? ऑफ कोर्स यहाँ आएगा। नहीं समझ में आ रहा बच्चों? यार देखो, अगर वर्टिकली रखोगे तो जाहिर सी बात है यार, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा। अगर ऐसे रखे तो ये डिस्टेंस तो मिरर के अंदर ही ना बनेगा यार, ठीक है? तो मेरे ये देखो, ये वाले पोर्शन में तो बनने से रहा, तो इसी वाले पोर्शन में ना बनेगा, तो ये वाला पोर्शन क्या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है क्या बच्चों? तो इमेज कहाँ बन जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में -x, -y। समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर? ओके। न्यूमेरिकल करते समय तुमको पता चलेगा कि ये बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों? तो आओ बच्चों कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इससे पहले कि अच्छा, तो सवाल लिखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। फाइंड द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट बच्चों। हाँ, रिफ्लेक्टेड इन एक्स है। तो बच्चों मान लो ये पॉइंट है 4,6। एक एग्जांपल करते हैं, आसान सा एग्जांपल बच्चों। 4,6 पॉइंट है, -5,3 है, राइट? यस सर। देन -8, -2 है, -8, -2 है। इनका इमेज निकालो बच्चों, क्या? वाई एक्सेस में। ठीक है बच्चों? तो पहले इन सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, है ना बच्चों? एग्जैक्टली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया वाई, ये -y, ये x, ये -x, ये ओरिजिन। ठीक है बच्चों? पहले देखो बच्चों, ये 4,6 यहाँ आया, 4,6 यहाँ आया, ठीक है? पहले दोनों पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव हो गया। ये दूसरा क्वाड्रेंट में, अरे यार हाँ यानी, और ये क्या हो गया? तीसरा क्वाड्रेंट में आ गया। अरे यार हाँ यानी, हमने मिरर कैसे रखा है? हमने मिरर रखा है वर्टिकली रिफ्लेक्टेड बाय वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों? तो मिरर तुमने ऐसे रखा है, तो अगर ऐसे रखा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? यहाँ बनेगा। जाहिर सी बात है बच्चों, तो इसका इमेज यहाँ क्या बन जाएगा? -4,6। इसका इमेज वहां बन जाएगा कितना? 5,3। इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, तो x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा -2। समझ में आया या नहीं आया? बोलो मेरे बाबू तुम लोग। अरे यार आसान है बहुत। ठीक है, हो गया बच्चों, राइट बच्चों? ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सबको करने हैं। आओ बच्चों एक और सवाल करते हैं, ठीक है? जरा ध्यान देके सुनो। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, -3,4 लिखो बच्चों, -3,4, ओके। और पॉइंट है -7, -3, दो ही पॉइंट लेते हैं बच्चों, ठीक है? एंड अब निकालो यार ओरिजिन से, तो क्या होगा? क्या लिखेंगे बच्चों? r(0) -3,4 क्या होता है बच्चों? माइनस, याद है मैंने क्या कहा था? r(x,y) ओरिजिन में क्या होगा? -x, -y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3, -4 हो जाएगा। r(0) क्या बच्चों? -7, -3 कितना हो जाएगा? 7,3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ हाँ या नहीं? बहुत ही आसान सवाल। अच्छा एक और सवाल बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना? r(0) ऑफ, देखो r(0) ऑफ 5,0 है ना, और r(0) ऑफ एक और सवाल है 0, -2। ठीक है बच्चों? एक है 5,0 और 0, -2। क्या आ जाएगा? बड़ा आसान सवाल सर, -5,0 आ जाएगा, 0,2 हो जाएगा। हाँ या नहीं? ठीक है, राइट? तो बहुत ही कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है बच्चों ये सब, ठीक है? राइट? तो बच्चों ये हम x एक्सिस में, y एक्सिस में और ओरिजिन में मिरर को रख करके उसका रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं बड़े ही आसानी से। हालांकि ये सब सवाल बहुत ही कम आते हैं बच्चों, जो सवाल आएगा मैं कराऊंगा उसको तुमको, ठीक है बच्चों? अब राइट बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, उससे पहले एक पॉइंट लिखो, इनवेरिएंट पॉइंट। है बच्चों? लिखो इनवेरिएंट, VARIANT, वेरिएंट पॉइंट्स। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जो पॉइंट चेंज ना हो वो क्या है? इनवेरिएंट पॉइंट है यार। हाँ या नहीं? देखो लिखो बच्चों, a point P is said to be invariant in a given line if the image of PXY in that line is PXY। ठीक है बच्चों? राइट? तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट है PXY, उसका इमेज भी PXY है, तब हम कहेंगे वो पॉइंट क्या है? इनवेरिएंट है। समझ में आया बच्चों? राइट? हाँ या नहीं? बच्चों गर्म पानी थोड़ा सा पीना पड़ रहा है क्योंकि गले में बहुत आराम है, इसीलिए। राइट? पॉजिटिव बोलना सीखो बच्चों, बहुत ही आराम है, शानदार, लाजवाब है, जबरदस्त है। ठीक है बच्चों? लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, फटाफट। ये आखिरी पोर्शन है बच्चों, ये आखिरी पोर्शन है, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसका। ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शंस लिखो,
कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा ध्यान देके देखो बच्चों, पहला पढ़ लिखो बच्चों, पहला मैं लिखाऊंगा बच्चों, हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा नोट में ये सब होना चाहिए। लिखो बच्चों, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन वाई एक्सिस followed by x axis, followed by, देखो, followed by reflection in x axis, ओके, x axis, ओके। तो बच्चों क्या लिखे हैं, देखो फॉलोड बाई है x एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया r x कॉमा y, ठीक है, ये कोई पॉइंट है बच्चों, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये हो जाएगा आर एक्स डॉट आर वाई, आर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, है ना, आर एक्स डॉट आर वाई, किसका, एक्स कॉमा वाई का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी इन वाई एक्सिस, तो हो गया आर वाई फॉलोड बाई एक्स एक्स, क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज आर एक्स, दैट इज इक्वल टू आर एक्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे बच्चों आर वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो आर एक्स, तुम बताओ, एक पॉइंट है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तुमने वाई में रखा है, तो सेकंड में बनेगा, सेकंड कोऑर्डिनेट नहीं बच्चों, वह सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थोड़ा सा गलती से निकल गया, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट में है ना, तो पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मिरर कैसा है, वर्टिकली है, तो इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड में एक्स हो जाएगा नेगेटिव, वाई हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों, ठीक है, ये आर एक्स, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अब तुम लिखे हो क्या, एक्स लिखे हो, तो एक्स मतलब ऐसे है, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ बनेगा, थर्ड में बनेगा, थर्ड में क्या है, दो नेगेटिव, सो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है, राइट। अरे यार, हाँ या नहीं, तो ये दिस इज नथिंग बट आर जीरो ऑफ एक्स कॉमा वाई, हाँ या नहीं, तो आई कैन राइट हियर, नहीं समझ में आया क्या यार, आर ओरिजिन ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होता है, माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, यहाँ आया ना, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई इज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई along the mirror placed inclined at the origin। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो आई कैन राइट हियर आर एक्स डॉट आर वाई इज इक्वल टू आर जीरो। समझ में आया बच्चों, राइट। तो नोट बना लो, ये फटाफट फटाफट बनाओ बच्चों, फटाफट, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, राइट। अब बच्चों मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, अब दूसरा लिखता हूँ, ध्यान देखो, सुनो, मैंने खाली एक्सेस बदल लेना है यार, है ना, तू मानिया मन दिलदारा असा दे तनु रब मनिया। चलो बच्चों ध्यान देकर सुनो, अब मैंने क्या किया, इसको x कर दिया, इसको y कर दिया, ठीक है बच्चों। तो पॉइंट क्या है, x कॉमा वाई, कहाँ निकालना है, इन x एक्सिस, तो मैं लिखूंगा आर एक्स फॉलोड बाई आर वाई, तो यहाँ लिखूंगा आर वाई। समझ में आया बच्चों, ध्यान देकर सुनो, हाँ या नहीं, अरे यार हाँ या नहीं, तो ये क्या होगा, आई कैन राइट हियर आर वाई, ये क्या, आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है बच्चों। तो एक्स कॉमा का वाई कहाँ है सर, पहला एक्सिस में है, अरे हाँ या नहीं, नहीं समझ में आ रहा बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, ये हो गया एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मिरर पहले हमने कहाँ रखा, एक्स में, तो ये रहा मिरर एक्स, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स ना यार, एक्स तो प्लस है ना, अरे यार पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, ठीक है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव हो गया। अब फिर मिरर कैसा रखो बच्चों, वर्टिकली, तो मिरर ऐसा रख दिए बच्चे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या नहीं, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो यहाँ क्या, दो नेगेटिव, तो माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, बट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई किसका है, एक्स कॉमा वाई का रिफ्लेक्शन अलोंग द ओरिजिन, तो हो जाएगा आर ऑफ एक्स कॉमा वाई। समझ में आया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, आर वाई, ये क्या हो जाएगा, पहला एक्स कॉमा माइनस वाई, दैट इज माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई, दैट इज आर जीरो ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो आई विल राइट अगेन आर वाई डॉट आर एक्स दैट इज इक्वल टू ऑल्सो आर जीरो, ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, आया समझ में। दूसरा, ये दूसरा पॉइंट था बच्चों हमारा, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है, नोट्स बना लो बच्चों, नोट्स तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है सर, नोट से क्या हो जाएगा, नोट से बहुत कुछ होगा मेरे बच्चों, राइट, नोट तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, तुम्हारा मेहनत का रिजल्ट है मेरे बच्चों, ठीक है, राइट, हाँ ना, क्लियर।
ओके, तो अब बच्चों तीसरा पॉइंट लिखो। लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस इन, अरे मैं तो मिटा दिया पूरा। तीसरा पॉइंट लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाई, इन एक्स एक्सिस followed by reflection in origin, reflection in origin, reflection in क्या बच्चों, origin। आया बच्चों समझ में? ठीक है, राइट। तो क्या लिखेंगे बच्चों, जरा ध्यान देंगे, सुनो। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई है ना, तो ये हो गया एक्स वाई, कहाँ बच्चों, ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आर एक्स फॉलोड बाई आर जीरो। अरे यार हाँ या नहीं समझ में आ रहा क्या, यही है ना, हाँ ठीक है। तो दैट इक्वल टू आर जीरो, पहले क्या लिखेंगे बच्चों, आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज आर एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, बच्चों एक्स कॉमा वाई कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। नीचे कैसा, एक्स में कहाँ बनेगा, चौथे में, तो क्या बन जाएगा, चौथे में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव होता है। समझ में आया या नहीं बच्चों? तो एक्स कॉमा क्या हो गया, माइनस वाई हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो दोनों नेगेटिव, सो माइनस एक्स कॉमा वाई बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? सो माइनस एक्स कॉमा वाई, दिस इज नथिंग बट, यस चिल्ड्रन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। किस एक्सिस में बच्चों, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स में वाई में हो जाएगा, दैट इज वाई। ठीक है, तो आई विल से आर जीरो डॉट आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया बच्चों, राइट। आर जीरो डॉट आर एक्स इज इक्वल टू आर वाई, समझ में आया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, इस एक्स को लिख देंगे वाई और ये रहेगा ओरिजिन में। ठीक है, तो स्लाइटली हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे जरा देखो यहाँ पर बच्चों, स्लाइटली चेंज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने कहाँ निकाला रिफ्लेक्शन, सर वाई में निकाला, वेरी गुड, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। सो पहले आर जीरो, अब लिखेंगे यहाँ आर वाई एक्स कॉमा वाई, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर जीरो। अब देखो एक्स कॉमा वाई पहला क्वाड्रेंट, मिलेगा कैसा, वर्टिकली, कहाँ बनेगा, सेकंड में, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई। देखो बच्चों क्या होता है, एक्स कॉमा वाई पहला क्वाड्रेंट में कैसे रखे, हॉरिजॉन्टल में, तो कहाँ बना, फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, निकल गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आर जीरो डॉट आर वाई इक्वल टू आर एक्स हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, मुझे बताओ। ठीक है, तो अब मैं समरी लिखता हूं बच्चों। ठीक है, 4 पॉइंट था, बहुत ही ईमानदारी से मैंने तुम्हें समझाया बच्चों। 4 पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक सवाल हम करेंगे, एक नहीं बच्चों, अनेकों सवाल करेंगे, है ना। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ मेन पॉइंट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट लिखो, समरी। समरी का पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहला पॉइंट पहला पॉइंट है आर एक्स डॉट आर वाई इज इक्वल टू आर वाई डॉट आर एक्स इज इक्वल टू आर जीरो, पहला। दूसरा बच्चों क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या है, सोच समझ देखो, देखो बच्चों फटाफट, आर एक्स डॉट आर जीरो, आर एक्स डॉट आर जीरो और आर वाई डॉट आर जीरो। ठीक है, नहीं सॉरी बच्चों, आर एक्स डॉट आर जीरो और आर जीरो डॉट आर एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू आर वाई। ठीक है, तीसरा आर वाई डॉट आर जीरो इक्वल टू आर जीरो डॉट आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स। ठीक है, राइट। अरे बच्चों, तो बच्चों देखो ये सब चीजें थी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ हमने सारा थ्योरी जो पढ़ना था, है ना, रिफ्लेक्शन चैप्टर के लिए हमने कंप्लीट किया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, तुम्हें पता है क्या करना है, राइट। तुम्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बच्चों, बहुतों के पास ये वीडियो पहुंचाना है, राइट बच्चों। तो बच्चों अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं
कम से कम 6 से 7 सवाल कराऊंगा जो कि वर्दी सवाल होंगे। आसान भी 1-2 सवाल कराऊंगा और सारे पीवाईक्यू के सवाल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार देख लो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सवाल देख लोगे तो ये चैप्टर परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, अब ज्यादा दिन एग्जाम नहीं है। ठीक है, तुम्हें मेहनत बहुत करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ठीक है, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो, खूब ध्यान लगा के पढ़ो बच्चों, है ना, क्योंकि सफलता तुम्हारी इंतजार कर रही है बच्चों। ठीक है, चुपके से पढ़ो बच्चों, मतलब दुनिया को बता के मत पढ़ो, चुपके से पढ़ो। ठीक है, और सफलता तुम्हारे जो जो शांत मेहनत को ना एकदम चकाचौंध, है ना, शोर शराबे में बदल देगी। ठीक है बच्चों, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।